श्रीपाद गुस्से यहाँ पे सामने ऑल ऑफ यू वायरस राजा मुंबई सर रुकिए सर लक्ष्मी मैम इस तरफ यहाँ पे ऑल ऑफ यू हो गया लुक किया ऑल ऑफ यू राइट साइड ये वन मोर ऑल ऑफ यू सेलिना मैम इमरान साहब पढ़े ना वही हम ना थैंक यू अभी तीनों ये साइड जाना नहीं जल्दी सारे यहाँ पर देखिए सामने सेलिना सामने सेलिना जी मैडम जरा यहाँ देखो ठीक है सेलिना मैम यहाँ से ऑल ऑफ यू लेफ्ट सेलिना थैंक यू सर यहाँ पे ऑल ऑफ यू सेलिना मैम थोड़ा हाथ पकड़िए यहाँ पे ऑल ऑफ यू रुकिए ये बीच में आदमी अभी बोल सेलिना एंड इमरान एक मिनट बोल इमरान भाई यहाँ पे इमरान भाई सेलिना जी सेलिना मैम ब्लॉक कर रहे हैं चलो हो गया एक साइड हो गया नहीं सेलिना जी ये देखिए सेलिना वहाँ पे कर देना अच्छा I don't think I'm the guest of honor. I'm one of the panelists because I think guest of honor is turned me into. You are very much the guest of honor. What nonsense. Yes. I would see myself as one of the panelists who's here to talk about an issue which means a lot to me and which means a lot to all of us. सेलिना ये आपने बेहतरीन कदम आपकी तरफ से ये लॉन्च करना इमरान भी आ गए हैं कुछ कहना चाहेंगे आज के अवसर पर बिल्कुल इमरान हैज़ बीन वेरी काइंड हमारे फ्री एंड यूनाइटेड नेशंस के फ्री एंड इक्वल कैंपेन के लिए इन्होंने आके हम लोगों का वीडियो लॉन्च किया एज द गेस्ट ऑफ ऑनर और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे लिए यूनाइटेड नेशंस के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज आप लोग सबके प्रेजेंस के द्वारा ये मुद्दा बहुत उठ के जगह जगह पहुँचेगा एंड यही हमारे कैंपेन का जो कोर ऑब्जेक्टिव है इज़ टू हैव मिलियंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस अराउंड द वर्ल्ड। इमरान आपने खुद ने भी एक वीडियो बनाया इस कॉज से जुड़े हैं कुछ बताना चाहेंगे जो वीडियो बनाया था उसके बारे में जो वीडियो बनाया था हमारा इरादा ये था कि हम कुछ लोगों की जो सोच होती है देयर आर लॉट ऑफ कॉमन मिसकंसेप्शंस लॉट ऑफ कॉमन प्रेजुडिसेस हम उन्हें एड्रेस करना चाहते थे वी वांटेड टू ब्रिंग देम आउट इनटू द पब्लिक एंड शो पीपल हाउ रिडिकुलस दे आर। सेलिना ये ब्यूटी पहली बार गा रही हैं जी बिल्कुल पहले तो कैसा रहा ये अनुभव आपके लिए मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि म्यूज़िक ही ऐसा एक माध्यम है जिससे हम ज़्यादा लोगों तक बिकॉज म्यूज़िक जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है और हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। मैंने कभी सिंगर के एस्पेक्ट से इस वीडियो को इतना ध्यान नहीं दिया जितना मैंने ध्यान दिया है कि म्यूज़िक के माध्यम से हम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं इसीलिए आई डिसाइडेड टू सिंग फॉर दिस या Are you guys going to attack Sumit after this? Is he going to need protection after this? The rest of you guys going to hit him? I don't think so. But okay, a question to both of you. This is quite a political storm happening right now. It's the election season. Everyone has their manifesto. Congress was pretty. Okay, there's quite a political storm happening now, Selina and Imran. It's the election season. Everyone has their own manifesto. Congress are quite upfront in sort of support the LGBT community in the past, especially in December when Section 377 did come into power again. But BJP has sort of been tight-lipped. Okay, I don't want to make it a political battle. Unfortunately, it already is.
and BJP is to come to power as well. Do you think somewhere the cause might get affected? As spokesperson of the United Nations, I would like to reiterate the fact that whoever comes into the power, our job with Free and Equal campaign is to be able to work with whichever government that is there. In together with the government. No, it is not always the same thing. Every government has their own ideologies and agendas. We do not know which government is going to come to power. I just hope that all political parties just put aside their differences for once and think for the people, of the people, and by the people, the constitutional guarantee that they give when we read our doctrine of constitution, which says we the people of India. Right. What do you have? I think Selena has actually raised a very, very relevant point. This is not an issue that is tied to any one political party. Certainly, we are in the midst of elections, and that is something that is not necessarily related. This is an issue that we have been talking about for many, many years, and my fear is that it is an issue that we'll continue to talk about and that we will continue to fight for many more years. At this one particular point, political parties will certainly use it as a talking point, something for or against. That doesn't matter. Whoever comes into power, this issue is going to continue to be at the forefront. It is still going to be something we'll talk about. It will still be something that we'll have to fight for. Because it's not just about it's about legality. Certainly that is a part of it. It is also about prejudice. It is about changing people's opinion. In India, it's just not about changing the. India में बहुत कुछ change करना है लोगों से कि इमरान ने कहा लोगों के mindsets change करना है. हम लोग के देश में इतने religion हैं, इतने cultural different backgrounds हैं. सबका mindset change करना तो एक रात में होगा नहीं. It is an on journey. I hope that we have the support of all political parties for this ongoing journey. पॉजिटिव डिसीजन आने वाला सा लग रहा है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेशराइज करना है? बिल्कुल नहीं. अगर कुछ अच्छा इफेक्ट होता है कोर्ट के डिसीजन में, सो देयर इज नथिंग लाइक इट. आई वुड टोटली, बट प्रेशराइज हम किसी भी चीज़ करने से कुछ भी प्रेशराइज नहीं करना थे. वी वांट टू ब्रिंग द रियल फैक्ट्स इन फ्रंट पीपल एंड वी वांट पीपल टू मेक द चॉइस टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स. दैट्स इट. नो अदर एजेंडा. Imran, my question is for you. What feedback have you received on your AIB win? The feedback was largely positive. Obviously, I think a lot of people, as we predicted in the video itself, a whole bunch of people came forward and said, so why are you supporting this cause? Is it because you are also gay? I said, this is exactly what we have talked about in the video. The reality is that we got great feedback. A lot of people enjoyed it. A lot of people found it very, very funny. And a lot of people completely missed the point. Which, I mean, that's life. Kya kare? How did your family and friends react to the video? My family has always supported me in everything that I've done. So they knew that what I was doing beforehand, and mom thought it was quite funny. Thank you. Thank you. No entry में वापस. फिलहाल तो I think I appreciate your question, but we would like to stick to the cause. Well, ये सिर्फ एक beginning है अवेयरनेस कैंपेन की. दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स. मिस्टर रैडक्लिफ जो कि मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है यूनाइटेड नेशन से, उनका आइडिया था कि अभी पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड है वो है बॉलीवुड का. तो जनरली जब इस किस्म के वीडियोस, अवेयरनेस वीडियोस बनाए जाते हैं तो वो बड़े सीरियस होते हैं. तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा कैंपेन क्रिएट किया जाए जो कि ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करता है. एंड बॉलीवुड से बड़ा ग्लोबल ट्रेंड कुछ हो नहीं सकता. तो इसीलिए हमारा जो पहला कैंपेन है, दिस इज अबाउट इट्स द फर्स्ट एवर बॉलीवुड स्टाइल ह्यूमन राइट्स कैंपेन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन. Next step is to have as many conversations all over the world about this cause as much as possible. Take the video everywhere that we can. Reach out to as many people as possible. That's why I would like to say to the entire media, please go, and all the people watching, please जाइए www.unfa.org पे. Go and watch the video, like the video, tell us what you think about it. Tell us what you think about equality and tell us what you think about acceptance. ओके सिंधा, आप दोनों जो काम कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन बॉलीवुड हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहा है. जब भी इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे को लेकर बॉलीवुड ने सपोर्ट किया है, और मुंबई में बहुत ज़्यादा देखा गया है. और मुंबई में पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा अपोज करती हैं जब इस तरह के सेंसिटिव इशू को कोई स्टार, खास करके फिल्मी सितारा हाथ लगाता है. आपको नहीं लगता कि कहीं इस तरह के अपोजिशन लोग अपोज करेंगे एक्शन? ठीक है, आपने हमारी इंडस्ट्री हमेशा सॉफ्ट टारगेट रही है, और पता नहीं क्यों जब कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है बहुत लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं. एंड दिस ओनली हैपेंस इन द वीक ऑफ रिलीज.
अब क्या करें, ऐसे लोग होंगे, गुंडे वगैरह होंगे, देन देयर आर पीपल हु डू वेरी वेरी फूलिश थिंग्स, बट यू कैन नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट। अगर आपकी कोई सोच है, आपके दिल में कोई बात है और आप उसे सपोर्ट करना चाहते हैं, उसे कहना चाहते हैं लोगों के सामने, आप ऐसे लोगों से डर नहीं सकते। यू कैन नॉट अलाउ दैट टू डिटर यू। सलीना, आप क्या कहना चाहिए? वेल, आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था कि हम लोग अमूमन जब भी फिल्म इंडस्ट्री किसी भी मुद्दे को, सेंसिटिव मुद्दे को लेके आती है, अगर वो यही चीज़ दिल्ली या कहीं और हो तो शायद इतना अपोज नहीं करा जाएगा, क्योंकि फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म आज के दौर में सबसे बड़ा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। हर कोई फिल्म देखता है, यू नो, एंड जो भी माध्यम हम लोग यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए इस कैंपेन में, इस ह्यूमन राइट्स कैंपेन में, मेरे ख्याल से हम लोग को यूज़ करना चाहिए। एंड इसीलिए जब फिल्मी माध्यम से कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ उठ के आती है तो ऑफ कोर्स लोग कमेंट करते हैं, बट आई डोंट थिंक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने लोगों तक पहुंच सके, उससे बड़ा, फिल्मों से बड़ा कोई माध्यम है ही नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, इमरान एंड सलीना, ये पॉजिटिव डिसीजन आ गया तब क्या? पॉजिटिव डिसीजन आ गया, दैट मीन्स दैट द लीगैलिटी इन इंडिया हैज चेंज्ड, लेकिन माइंडसेट बदलने में काफ़ी वक्त लगेगा। सो द वर्क इज नॉट ओवर देन। Work is never over because the strive for equality, as long as humankind is there, will always continue. Our aim should be to work together, and I really thank all the members of media being present here. Please work together with us to take this cause forward. Thank you for your support. Thank you so much.